Hi everyone. So we are live again, and with the batch of the insect, uh, we are going to start with a very fresh chapter of your incept batch, and that is going to be the Plan Kingdom. तो प्लान किंगडम का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का इनफैक्ट हम पूरा जो ये चैप्टर है प्लान किंगडम का वी विल बी स्टार्टिंग इन थरो डिटेल्स एंड along with that we will be different parts and different sections में हम पढ़ने वाले हैं प्लान किंगडम का. And in this portion we are going to talk about we are going to in fact discuss about the different categories of the plant hierarchy क्या होती है and what are the different adaptations जो कि one category of plant को दूसरे category of plant से distinguish करके रखता है. We will be discussing all about that aspects in this first section of this plant kingdom. So basically it different parts में divided है, different sections में divided है. So this is going to be, today is going to be your first lecture for the plant kingdom part. All right, now let us first start with the some of the basics of the plant kingdom. All right, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, हम ये जानेंगे that why the categorization or classification system is important. हम जब कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये जानना that plant kingdom has been named as a particular kingdom और उसमें इतने अलग अलग classes हम पढ़ते हैं, so why there is a need to classify all those organisms and all those things. Clear? तो हम इसके बारे में आज इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. So let's start with the very first part. So we know कि हमने biological classification वाले चैप्टर में R.H. Whitaker ने propose किया था 1969 में the five kingdom classification, and all those in five kingdom of classification पांच जो categories थे, there was kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, and then there was kingdom Plantae. तो हम जो इसमें सपोर्ट करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज द प्लांट किंगडम कैटेगरी. ऑल राइट, नाउ जो बेसिक फीचर्स होते हैं प्लांट्स के, वी ऑल नो दोस थिंग्स दैट प्लांट्स आर green in color because of chlorophyll, they can carry out photosynthesis, they are autotrophic. But कुछ plants ऐसे भी होते हैं which are considered to be insectivorous plants as well, so they have heterotrophic mode of nutrition. Then a cell wall is usually made of cellulose. Then जो भी इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स है, बेसिक फीचर्स वी ऑल नो इट, ठीक है. बट जब हम कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो सिस्टम इसमें आती है वो हो जाएगा क्लासिफिकेशन टाइप्स. ऑलराइट, सो इसमें जो हमें पढ़ना है वो हो जाएगा क्लासिफिकेशन टाइप्स की प्लांट किंगडम के. क्लियर? तो क्लासिफिकेशन टाइप्स में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन टाइप जो कि प्रपोज्ड होता है, that is considered to be as the artificial system of classification in case of the plant kingdom. So it can be artificial, आपके कोर्स में जो इंक्लूड किया गया है, that is artificial system of classification. Then there is natural system of classification that we are going to talk about it. तो natural system है. And the third is considered to be as the phylogenetic system of classification. So these are the three important and three distinct systems of classifications which are found in case of the plant body. Now, the one thing to note in all these categories is that कि artificial system of classification क्या है, natural क्या है और क्या phylogenetic का meaning है, ठीक है. तो artificial system of classification, as you can see over here, कि it is considered to be as one of the earliest system of classification which used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जनरली जो कैरेक्टर्स जिनको इंक्लूजन में लिया गया था क्लासिफिकेशन में, all those characters were considered to be as the morphological characters. मतलब नंबर क्या है लीफ का, शेप कैसा है, हैबिट कैसा है, हैबिटेट कैसा है, ये सारी चीजें. Now these were mainly based on the vegetative characters or on the androecium structure. ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था ये सिर्फ और सिर्फ जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होता है प्लांट बॉडी का. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब क्या,
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मीन्स लाइक लीफ, स्टेम, रूट, बड्स, इन सब पे ये बेस्ड था. एंड ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्राइमरीली मेंट फॉर कैटेगराइजिंग द डिफरेंट डिफरेंट प्लान प्लान किंगडम कैटेगरीज. ठीक है. अब ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस वाज प्रपोज्ड बाय कैरलस लीनियस. सो कैरलस लीनियस वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था. ऑलराइट. एंड ये एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड भी था. Now they separated the closely related species since they were based on few characteristic. अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि क्योंकि सिर्फ कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर इस क्लास ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेस था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस था जो कि कैरलस लीनियस ने प्रपोज किया था. So this system of classification was not considered to be very popular. इतना ये पॉपुलर नहीं हुआ एंड इतना ये जाना माना नहीं हुआ. Now this is the case. So also the artificial system of classification, इसका एक drawback ये आ गया था यहाँ पे that though it was the first system of classification जो कैरलस लीनियस ने प्रपोज किया था, but the drawback was that it gave equal weightage to vegetative as well as sexual character. इसने vegetative as well as sexual characters means the characters including the characters of a flower जिसमें आते हैं. ठीक है. जैसे कि एंड्रोइशियम हो जाएगा, पेटल, सेपल, एंड्रोइशियम, कार्पेल, ये सब जो पार्ट्स हो जाएंगे वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो जाएंगे. तो ये जो दो कैरेक्टर्स थे ना इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि नोइंग दिस फैक्ट कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का ज्यादा वेटेज है, लेकिन इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया था. दैट्स व्हाई दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम, सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, तो उनका कंपैरिजन सेक्सुअल कैरेक्टर्स के साथ करना दैट वुड बी अ लिटिल डिस्क्रिपेंसी वाला केस आ जा रहा था. सो दैट्स व्हाई. नाउ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है ये बेंथम, इसको बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है. एंड सबसे जो खास बात थी, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था क्लासिफिकेशन. क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट बॉडी, नॉट ओनली द वेजिटेटिव कैरेक्टर, नॉट ओनली द सेक्सुअल कैरेक्टर, बट एनाटॉमिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली, साइटोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली जो पॉसिबल कैरेक्टर्स हो सकते थे प्लांट बॉडी के, सारे कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट बॉडी को इसमें इंक्लूड किया गया था. सो ऑल द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट बॉडी, जितने नेचुरल कैरेक्टर्स हो सकते थे, they were all considered to be included in this system of classification, and not only the external features. जैसे कि इसमें internal features भी आ गए like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry, all those things. And that's why such classification system for the flowering plants that was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो ये सबसे ज्यादा अभी तक की क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है, this is the natural system of classification, which is considered to be as the most popular system of classification till date. ठीक है. Now the next stands for the phylogenetic system of classification. Now जब हम phylogenetic system of classification की बात करते हैं, so this system of phylogenetic का मतलब होता है any classification which is related with the evolutionary relationship. ठीक है. evolutionary relationship मतलब क्या? evolutionary relationship amongst the organisms. इसके पैरामीटर के बेसिस पर, evolutionary relationships के बेसिस पर जब इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को डिफाइन किया गया, बताया गया, तो एवोल्यूशनरी पैरामीटर्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया था. सो दिस इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स दैट आर acceptable. Clear? Now this assumes that organisms belonging to the same taxa, they will be having a common ancestry. तो इसमें यही बोला गया कि ऐसे organisms जो कि same taxa का मतलब क्या हो जाएगा कि same group से जो belong करते हैं, ठीक है, तो वो उनका common ancestry जो होगी, मतलब origin जो होगा, origin point that will remain the same. So we now use information from many other sources to help resolve difficulties in the क्लासिफिकेशन. तो हमें
तो क्लासिफिकेशन होना ये जरूरी था, बिकॉज क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर एप्लीकेबल नहीं होता ना, so this wouldn't have resulted into the categorization of the plant species. Plant species का categorization नहीं हो पाता, plant species के features को distinctive बोल सकते हैं कि distinctive characterization नहीं मिल पाता. So for that reason इतने सारे plant species हैं हमारी पूरे plant kingdom में, तो अलग अलग plant species के characters अलग अलग हो जाते हैं, distinctive हो जाते हैं. So for that reason this classification system was important. And phylogenetic system of classification, this was actually given by Engler and Prandtl. So they were the scientists जिन्होंने propose किया था. Apart from that, Hutchinson was also considered to be as the pioneer of the phylogenetic system of classification, जो कि उन्होंने evolutionary relationships के basis पर plant kingdom के groups को अलग अलग convenient categories में categorize किया गया था. ठीक है. So this is about the systems of classification: natural, artificial and phylogenetic. Now let us just talk about the branches of taxonomy. ठीक है. तो जब हम branches of taxonomy की बात करते हैं, अब हमें classification system तो देख लिया, but हमें ये भी तो पता चले कि ये जो categorization है, ये जो classification system है, ये किस branch of science में हम study करते हैं. So this classification system is studied in a branch of science which is called taxonomy. तो taxonomy के भी कई branches हो गए थे. All right. So किसी को numerical taxonomy का नाम दे दिया, ठीक है. So one is called as the numerical taxonomy. The other is called as the cytotaxonomy. Clear? So numerical taxonomy, then taxonomy, then there is chemotaxonomy, yeah. So numerical taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy, ये तीन categorization है branches of taxonomy का. Now what is numerical taxonomy? Numerical taxonomy basically वो taxonomy होता है ना जिसमें plant के characters को numbers and codings दी जाती है, ठीक है. जैसे plant का कोई एक particular character है तो उनको numbers and codings दे दिया एक plant को देख के, and वो जो characters and codings होता है उनको फिर अल्टीमेटली एक डेटा के फॉर्म में कंपाइल करके दे हैव टू बी दैट एंटायर डेटा हैज टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स में उसको फिर फेड कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है. सो दिस टैक्सोनॉमी इज इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ठीक है, जैसे कि नंबर्स एंड कोड्स को असाइन किया जाता है टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस, डेटा का देन प्रोसेसिंग किया जाता है. So in this way, each character is given equal importance and at the same time, hundreds of characters can be considered. तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी कैरेक्टर होगा, चाहे वो छोटा कैरेक्टर हो, चाहे वो बड़ा कैरेक्टर हो, whether it's a small character of the plant body, whether it's a big character or an important character of the plant body, none of the characters will be missed. कोई भी missed नहीं होगा, and each character of the plant body will be given an equal and an important weightage. ऐसा हो जाता है, ठीक है. फिर उसके बाद जो आता है वो हो जाएगा साइटोटैक्सोनॉमी का कैटेगरी. ना साइटो का मतलब होता है ना जितने भी साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट बॉडी के, मतलब सेल से रिलेटेड साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जितने होंगे वो सारी चीजें इसी में इंक्लूड की जाएगी. सो साइटोटैक्सोनॉमी इज बेसिकली बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा, इन सब पे ये बेस्ड होता है. सो दैट इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी. ठीक है. कीमोटैक्सोनॉमी क्या हो जाएगा? सो एज द वर्ड इज सजेस्टिंग कि ये कीमो है, तो कीमो का मतलब हो जाएगा कि वट एवर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर प्रेजेंट ओवर देयर. क्लियर? जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट बॉडी में होते हैं ना, ये उससे डील करता है. क्लियर? सो वट एवर द chemical constituents of the plant body to resolve the confusions, they are also used by the taxonomists these days. So this is about the branches of taxonomy, numerical, cyto and chemotaxonomy that we have seen. And apart from that, we have also seen the classification system and its types. Now let us just take a look into the first category of the plant kingdom, and that is called as the LNE. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं. Now, see,
सो एल्गी की जब हम बात करते हैं ना, तो एल्गी क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट ऑर्गेनिजम्स that can be either fresh water also and that can be either marine organisms also. So जब हम थैलॉइड की बात करते हैं ना, तो इसका थैलस को जब आप देखोगे ना, तो कुछ ऐसा तरीके का दिखता है, फ्लैटन स्ट्रक्चर्स की तरह रहते हैं, एक दूसरे से connected रहते हैं like this. So it is having the presence of ये सारे के सारे जो थैलस होते हैं ना, स्मॉल अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह रहते हैं, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. नाउ दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स में, वुड में. क्योंकि ये कंप्लीटली एक्वेटिक होते हैं, तो जनरली इनका ग्रोथ जो होगा वो उन सारे पॉसिबल एरियाज में हो सकता है जहां पे इनको मॉइस्ट का कंडीशन मिलेगा, whether it's a moist stones, then soils and wood and all those places, ठीक है. नाउ सम ऑफ देम कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ फंजाई के भी एसोसिएशंस में मिलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल these are basically lichens. तो algae in association with fungi, तो ये बेसिकली दो कंडीशन आ जाएगा. सो lichens के एसोसिएशन में भी इनका माइक्रोराइजल lichen जो होते हैं, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ symbiotic mutualistic association between algae and fungi. तो algae और fungi के बीच का ये एसोसिएशन होता है, क्लियर. और algae में भी जो algae इन्वॉल्व हो जाएगा, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया वाली जो एल्गी होती है, दैट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व ओवर हियर. सो ये हो जाएगा केस जो आपको ध्यान में रखना है, क्लियर ना. इसमें जैसे कि स्लॉथ बेयर का एग्जांपल इसमें मेंशन्ड है, क्लियर ना. अपार्ट फ्रॉम दैट, द फॉर्म एंड साइज, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी जो होता है वो हाईली वेरिएबल है. अब ये एक सिंगल यूनिसेल्यूलर एल्गा से शुरू होते हुए, इसके लिए मैं आपको रादर फिगर दिखाऊंगी, सो यू विल बी more in a clear position to watch it. See, अगर हम इसको कंसिडर करें, so basically जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट माइट स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल यूनिसेल्यूलर एल्गी लाइक दिस, ठीक है. एक सिंगल यूनिसेल्यूलर समझ लीजिए कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो क्लमाइडोमोनास होता है, उससे शुरू होते हुए, ठीक है. सो Chlamydomonas, which is unicellular, उससे शुरू होते हुए it might go up to a higher level of category of organization, जिसको हम बोल सकते हैं कॉलोनीज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, which is usually made of, जो कि Chlamydomonas के एसोसिएशन से ही बनता है. Chlamydomonas एग्रीगेट करके ही वॉलवॉक्स बनाते हैं कॉलोनी लाइक. देन दिस इज फिलामेंटस, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ फिलामेंटस एल्गी. और ये बेसिकली फिलामेंटस में भी ये अनब्रांच्ड फिलामेंटस, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है. सो दिस इज दैट्स व्हाई फिलामेंटस, ये भी आपका ये जो होंगे ये हाईली ब्रांच्ड हो जाएंगे. ये आप देख सकते हैं, दिस वन, दिस फिगर, दिस एल्गी, दिस टाइप ऑफ एल्गी इज हाईली ब्रांच्ड. यहाँ पे मेंशन भी है, दिस बिलोंग्स टू योर डिक्टियोटा, जो कि ब्राउन एल्गी का कैटेगरी है, ठीक है. यहाँ पे आपको देख सकता है प्रॉन्स टाइप एंड होल्डफास्ट के तरह, ये रेड एल्गी का एग्जांपल है जो यहाँ पे मेंशन्ड है, क्लियर. सो इनके ब्रांचेस अगर आप देखेंगे, सो दिस विल मोर और लेस लुक लाइक अ काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन. तो ये यूनिसेल्यूलर से लेकर के मल्टीसेल्यूलर से लेकर के कॉलोनी से लेकर के एल्गी से मतलब फिलामेंटस से लेकर के पैरेन्काइमेटस फॉर्म तक पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर जो होता है बनाते हैं. इनका जो वेरिएबिलिटी होती है साइज की, वो इस तरीके की दिखती है, क्लियर. So that has been written over here. वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, mentioned है, that the form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox to filamentous form like Eulophrix and Spirogyra. और कुछ मेराइन फॉर्म्स ऐसे होते हैं, जैसे कैल्ब्स जो होते हैं, वो तो मैसिव प्लांट बॉडी बना देते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था रेड एल्गी के केस में. सो दैट इज द केस. Now, what is the process through which the reproduction is going to take place? तो reproduction की जब हम बात करते हैं एल्गी में, तो एल्गी में 3 ways के through reproduction हो सकता है. So reproduction can be carried out via 3 ways. It can be vegetative, clear. It can be asexual,
and it can be sexual as well. So वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज थ्रू अ वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन. मतलब कोई भी फिलामेंटस एलेगी का फ्रैगमेंट कहीं भी अगर स्प्लिट करेगा so that is going to give rise to a new एलेगी. So that is called fragmentation. ठीक. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है जिसको हम जू स्पोर्स कंसिडर करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मेंशन भी है that the algae reproduces by vegetative, asexual and sexual method. वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा. फ्रैगमेंटेशन क्या हो जाएगा that each fragment develops into a new thallus. ब्रेक करेगा, स्प्लिट करेगा और हर फ्रैगमेंट न्यू थैलस में डेवलप करता है. asexual reproduction जो होता है that is by the production of different types of spores, जिसमें कि जो सबसे कॉमन हो जाएगा वो हमारा जू स्पोर होता है जो मैंने आपको मेंशन किया है. जू स्पोर्स एसेक्सुअल मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यूजुअली दे हैव द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला. मोटाइल इसलिए बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला इन देम, दैट्स व्हाई. ठीक है. सो दे आर flagellated, motile, and on germination give rise to, they are going to give rise to new plants. Now sexual reproduction की जब हम बात करते हैं तो sexual reproduction takes place through the fusion of two gametes. Sexual reproduction है तो definitely male and female gametes इसमें दोनों बने. Clear? So male and female gametes. Yeah. So male and female gametes इसमें दोनों बनते हैं. And these gametes they can be flagellated and similar in size, जैसे कि Lothrix में होता है, or they can be flagellated but similar in size, non-flagellated and similar in size, जिसको हम Spirogyra बोलते हैं. Now such reproduction is called as isogamous. Now sexual reproduction की further 3 categories होते हैं. अब इसमें क्या था, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे और इनका अल्टीमेटली फ्यूजन होगा तो वो जाइगोट बनाएगा. क्लियर? तो जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट. लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरीज की बात करते हैं ना तो इट कैन बी आइदर आइसोगेमस. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स. क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो इट कैन बी आइदर isogamy or you can say isogamous. Then there is an isogamous, and then there is oogamous. ठीक है. आइसोगैमस कंडीशन में जब हम देखते हैं तो आइसो का मतलब हो जाएगा सिमिलर, मतलब इसमें जो गैमेट्स होंगे वो सिमिलर साइज के हो जाएंगे. तो इसमें जैसे कि इसमें बोला ना कि आइसोगैमी में गैमेट्स आर ऑफ सिमिलर साइज, तो वो फ्लैजेलेटेड भी गैमेट्स हो सकते हैं. सो फ्लैजेलेटेड but similar in size, और यहाँ पर होता है नॉन फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज. दोनों चीज आ जाएंगी. सो फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज कैसा हो जाएगा, जैसे कि ये दोनों जो होंगे मेल एंड फीमेल गैमेट वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस. क्लियर? नॉन फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर साइज का मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस. दिस इज तो वही एग्जांपल्स इसमें मेंशन है. अनाइसोगैमी का मतलब हो जाएगा कि दीज गैमेट्स दे विल बी डिसिमिलर इन साइज. साइज जो हो जाएगी वो अलग अलग हो जाएगी. तो मेल गैमेट जनरली इसमें छोटा होगा and female gamete is usually bigger. So you can see that fusion of two gametes which are dissimilar in size as in species of Eudorina, that is termed as anisogames. तो इसमें हो जाएगा कि एक जो होगा there is a larger gamete, then there is a smaller gamete.
दिस इज द केस। oogamous के केस में इट इज स्लाइट डिफरेंट, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें दो गैमेट्स होंगे, मेल एंड फीमेल, और इसमें जो फीमेल गैमेट होती है वो यूजुअली बड़ी होती है एंड इट इज मोटाइल, नॉन मोटाइल। ऑलराइट, सो दिस इज द फीमेल गैमेट व्हिच इज यूजुअली लार्ज एंड नॉन मोटाइल, while मेल गैमेट जो होता है वो यूजुअली स्मॉलर होता है एंड इट इज मोटाइल इन शेप। दिस इज द केस, दिस इज द मेल। क्लियर? तो ये हो जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ आइसोगैमी एंड आइसोगैमी एंड ओगैमी, that is a category of the sexual reproduction in case of the एलिगी। ठीक है, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस का एग्जांपल हो जाए। नाउ लेट अस जस्ट टेक अ लुक इनटू द कैटेगरीज ऑफ एलिगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इनका कैसा है सिस्टम। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिगी का। Algae, they are useful in a variety of ways. Before coming into the classes, सबसे पहले हम एल्गी का ना इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। एल्गी ना मैन को बहुत ही वैरायटी ऑफ वेज में यूजफुल है। लाइक फॉर एग्जांपल, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है अर्थ में ना, दैट इज कैरिड आउट बाय एल्गी ओनली एंड दैट इज थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये ध्यान में रखना है कि मतलब मोर देन 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है अर्थ में, that is actually carried out through algae only. All right, then being photosynthetic, they can increase the level of dissolved oxygen content in their immediate environment. सीधी सी बात है, हाफ से ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है अर्थ में, so they are going to increase the level of dissolved oxygen content in the environment. So that is the case. Now they are of paramount importance as they are the primary producers of energy rich compounds which forms the basis of food cycles of all the aquatic animals. Clear? इसमें भी है भाई, क्योंकि एल्गी जो होता है they are thalloid like structures which are rich in pigments and which are rich in food reserve materials as well, like starch and all those things. तो इसके वजह से they are also the source of energy rich compounds. Now many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae जिनको ना फूड की तरह यूज किया जाता है। तो 70 species of marine algae को they are commonly used as food। ठीक है, वो फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। कुछ marine and brown red algae ऐसे होते हैं that produces large amount of water holding substances which are called hydrocolloids. So hydrocolloids क्या हो जाएंगे? Hydrocolloids water holding substances होते हैं जो कि red algae and ब्राउन एलगी प्रोड्यूस करता है। ब्राउन एलगी से एल्जिन प्रोड्यूस होता है और रेड एलगी से कैरागीन प्रोड्यूस होता है एंड दीज आर यूज्ड कमर्शियली। इनको ना कमर्शियली मतलब मार्केट वैल्यू इनकी बहुत ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर व्हिच इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, दे आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। तो उनका ना ग्रोथ माइक्रोब्स के लिए बेसिक जेलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है and in the preparation of ice creams and jellies as well. Clear? Apart from that, chlorella and spirulina, ये दोनों ऐसे basically species होते हैं जिनका main function ये हो जाएगा that they are primarily responsible for acting as a food supplement by the space travelers. ठीक है, क्योंकि स्पेस में ज्यादा चीजें तो कैरी हो नहीं सकती, ओनली प्रोटीनेशियस, सो whatever the things that can be of as easy as accessible in the form of food, वो carry किया जाता है. So that is the case. So the algae are actually divided into three main classes: chlorophyceae, pheophyceae and rhodophyceae में इनको divide किया गया. Now let us just take a look into the different categories. Now chlorophyceae. So chlorophyceae का जो common name हो जाएगा ना, let me first tell you the basic features along with its in the form of table. पहले हम ये table का features देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही important है, and then we can deal with other things. Let me just maximize this part. Clear? Now देखिए, see. Now पहले हम टेबल का पार्ट देख लेते हैं because table part is very very important.
तो उसमें हम डील करेंगे और उसमें हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, ठीक है। तो देखिए, सो देयर इज क्लोरोफाइसी, देन देयर इज फियोफाइसी एंड देन देयर इज रोडोफाइसी। सो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी की जब हम बात करते हैं, तो क्लोरोफाइसी को नाम इसलिए क्लोरोफाइसी का दिया गया है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द important and one of the first categories of the plant kingdom एलिगी का, जो कि जिसका मेन फंक्शन होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करा के फूड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नाउ दे हैव बीन गिवन अ कॉमन नेम व्हिच इज कॉल्ड एज ग्रीन एलिगी, क्लियर। देन दे आर कॉल्ड एज, इनका जो मेजर पिगमेंट इसमें हमें मिलेगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। द रिजर्व फूड मटेरियल, दैट मीन्स द स्टोर्ड फूड, इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च व्हिच यू कैन सी। सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज के फॉर्म में हो जाएगा। एंड फ्लैजुला, कितना फ्लैजुला होगा, दैट मीन्स फ्लैजुला कैन आइदर बी 2 to 8 इन नंबर, दे कैन बी इक्वल एंड एपिकल। तो इसका मतलब कैसा होगा, ये जो मैंने फ्लैजुला यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था तो वो ऐसा रहता है। सो दिस इज 2 इन नंबर, ये फ्लैजुला 2 नंबर में है, इक्वल है, दोनों की साइज बराबर होती है फ्लैजुला की। एंड इट कैन बी एपिकल, एपिकल का मतलब हो जाएगा कि टिप पे, दिस इज एपिकल, क्लियर। Now they can be found in fresh water, brackish water and salt water. ठीक, पियोफाइसी का देख लेते हैं। पियोफाइसी का वो ब्राउन एलिगी हम बोलते हैं बिकॉज दे कंटेन ब्राउन पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजांथिन। तो फ्यूकोजांथिन की वजह से दे आर ब्राउन इन कलर। रिजर्व फूड जो होता है इसमें मैनिटॉल एंड लैमिनरिन हो जाएगा। एंड द सेल वॉल इज मेड ऑफ एल्जिन, सेल्यूलोज तो होता ही है बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज एल्जिन एज वेल। एंड इसमें जो फ्लैजुला हो जाएगा दैट इज टू अनइक्वल एंड लैटरल इन पोजीशन। सो टू अनइक्वल एंड लैटरल इन पोजीशन का जो फ्लैजुला होता है, सो दिस समथिंग लुक्स लाइक दिस। इसके जो आप स्पोर्स देखोगे ना, सो दिस इज लाइक दिस, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज लैटरल इन पोजीशन, मतलब एक बड़ा अनइक्वल हो जाएगा बिकॉज दिस इज लॉन्ग एंड दिस वन इज शॉर्ट, clear। So that's why two unequal lateral in position. They may be found in fresh water, however they are very rare in fresh water, but mostly found in brackish and salt water, ठीक। रोडोफाइसी की बात करें, so they are called as red algae. Chlorophyll A, D and phycoerythrin is the main pigment. Floridian starch is the reserve food, main reserve food material that you can see. And the cell wall is usually made of cellulose, pectin and polysulfate esters. इसमें फ्लैजुला एब्सेंट होता है, मतलब इसके जो स्पोर्स होते हैं या जो मतलब इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनमें फ्लैजुला नहीं होता, so they do not have the presence of flagella in them, so it is absent. फ्रेश वाटर में कुछ कंपोनेंट हो जाएंगे, while brackish water and salt water इसमें ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इसके मिलेंगे, क्लियर। सो दिस इज द केस। तो सबसे पहले अगर हमने फ्लो चार्ट को लर्न किया है तो फ्लो चार्ट से बहुत सारी चीजें कन्वीनियंट हो जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में इस बात को रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप लर्न करोगे तो पहले फ्लो चार्ट को एक बार देख लीजिएगा ना। अब हम इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। सो ओके, सो बेसिकली इसमें हम देखें जब, तो मेंबर्स जो होते हैं क्लोरोफाइसी के, दे आर कॉमनली कॉल्ड, like this, alright। नाउ मेंबर्स जो होते हैं क्लोरोफाइसी के ना, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एलिगी। वो मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि पिगमेंट ग्रीन प्रेजेंट होता है, ए एंड बी, दैट्स व्हाई। दे मे बी यूनिसेल्युलर और कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो यूनिसेल्युलर में क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा, कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स आता है, फिलामेंटस में स्पाइरोगारा आ जाएगा, ठीक है। Now they are usually grass green because of the dominance of pigments which is chlorophyll A and B, ठीक है। The pigments are localized in a definite chloroplast and the chloroplast they may be of different chloroplast जो होते हैं ना, इनके बहुत यूनिक होते हैं। इन्हीं के स्पीशीज में क्लोरोफाइसियन मेंबर्स में ही क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, अदरवाइज थियोफाइसियन रोडोफाइसियन में क्लोरोप्लास्ट का शेप एक ही रहता है, they do not vary। So they can either be, they can either be discoidal in shape, plate-like, cup shape, spiral or ribbon shape, अलग-अलग shape के हो सकते हैं, depending upon the kind of species. So most of them also have the presence of one or more storage bodies, which are actually called as pyrenoids. So they also have the presence of storage bodies, which are pyrenoids.
एंड पायरेनॉइड्स जो होते हैं, दिस इज बेसिकली द प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, जिसका स्टार्ची एक शीट होता है, कवरिंग होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज होता है. दे कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च. Some algae may also store food in the form of oil droplets as well. Green algae, they have a rigid cell wall and the inner is made of cellulose and the outer is made of pectose. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Now, vegetative reproduction is commonly by fragmentation and asexual reproduction जो हो जाएगा, that is via zoospores के formation के through होगा, जो कि zoosporangia में बनेंगे. Now, sexual reproduction considerable variation show करता है अलग अलग टाइप का. It can be of three types. It can be isogamous, it can be anisogamous, or it can be oogamous as well. मतलब तीनों तरीके का इसमें मिलता है, ठीक है. तो कॉमनली जो फाउंड स्पीशीज इसमें हो जाएंगे वो जाएगा क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, सिलोप्टिक्स, स्पाइरोगारा, कैरा, बहुत सारी स्पीशीज हो जाएंगे. Yeah. So this is about the chlorophyce that we have seen. Now, phaeophyce की जब हम बात करते हैं, तो जो मेंबर्स होते हैं फियोफाइसी के, उनको हम ब्राउन एलिगी कंसिडर करते हैं. ब्राउन क्यों? क्योंकि ए, सी एंड ग्लूकोजांथिन ऐसा होता है. दे आर ऑफ प्राइमरीली मराइन हैबिटेट. क्यों? ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत रेयर होते हैं. जनरली दे आर ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्टी वाटर. ब्रैकिश एंड सॉल्टी वाटर के तरीके का ये हो सकते हैं. Apart from that, they show a very great variation in case of size and forms. They can range from simple branched form to filamentous form like ectocarpus to profusely branched forms such as scalps. ठीक है, तो इसमें मतलब एक छोटे से पार्ट से लेकर के, इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर, तो इसमें एक छोटे से पार्ट से लेकर के, छोटा सा प्लांट बॉडी से लेकर के एक मैसिव प्लांट बॉडी तक बनाने की एबिलिटी होती है, which can reach up to a height of around 100 meters. All right. So they are going to possess chlorophyll A, C, carotenoids, and xanthophylls. Varies in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll, glucoxanthin present in them. Clear? तो इसमें मैं आपको एक दो चीज दिखा देती हूँ, अगर आपको एक आइडिया लगे. तो ये जो आपको तीन स्पीशीज दिख रहे हैं, 1, 2 and 3, they are the brown algae का ये example है. This is laminaria, this is sargassum, and this one is the laminaria, this is fucus, and this is the dictata. You can see कि इनके जो प्लांट बॉडी होती है ना, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट. फ्रॉन्ड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्टाइप डंडी की तरह होता है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. एंड होल्ड फास्ट जो होता है ना, वो अटैचमेंट में हेल्प करता है सबस्ट्रेटम के, मतलब रॉक्स वगैरह होगा तो उसे अटैच करने में हेल्प करेगा. ठीक है. सो यू माइट ऑल्सो सी द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन सम स्पीशीज, जो कि फ्लोटेशन में हेल्प करेगा. सो दैट इज द केस. और सारी चीजें तो एक जैसी होती हैं. क्लियर? तो ये हमने ब्राउन का देखा है, ये इतना बता दिया. क्लियर? सो फूड जो होता है इनमें, दैट इज बेसिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लैमिनरिन. ये ध्यान में रखना है. वेजिटेटिव सेल्स का सेल्यूलोसिक सेल वॉल होता है on the outside and a gelatinous coating of algin is also found. मतलब एक gelatinous sheet like structure होता है जो cover करके रखता है, that is called algin. Now the protoplast, it usually contains, in addition to plastid, a centrally located vacuole and nucleus. तो इसमें दोनों चीजें होती हैं. Plant body usually substratum से attached होता है holdfast के through, has a stalk called stipe and a photosynthetic organ, leaf like photosynthetic organ, जिसको हम frond बोलते हैं. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दिस इज द पार्ट, ये वो कैटेगरी होती है एल्गी की जिसका इम्पोर्टेंट काम है कि इसके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड, यहाँ से डिस्टिंक्शन शुरू हो जाता है, तभी एक मैसिव प्लांट बॉडी बनाता है. सो दैट्स व्हाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस थ्रू द बाइफ्लैगेलेट zoospores which are pear shaped and two unequal laterally placed or laterally attached इनमें flagella होगा. Sexual reproduction can be iso, aniso or oogamous can be that. इसमें भी तीन तरीके का होता है. Gametes जो होता है उनका union and fusion will take place in water or can also take place within the oogonium as well. Clear? Now, तो gametes जो होते हैं they are usually pyriform, जिसको हम pear shape बोलते हैं, and bears two laterally attached flagella. The common forms are ectocarpus, dictyota, laminaria, sargassum and
फ्यूकस हो जाएगा। तो इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्लियर? सो दैट इज द केस। ना रोडोफाइसी की जब हम बात करते हैं तो रोडोफाइसी मेंबर्स जो होते हैं दीज आर प्राइमरीली मेंट फॉर possessing, they're all in fact they're called as the red algae because members जो होते हैं इनके they have the presence of photosynthetic pigment which is called as the you know chlorophyll A होता है, chlorophyll D होता है, phycoerythrin is basically found. For that reason they are considered to be as the red algae. Now because of the predominance of the red pigment, now majority of them they are called they are considered to be marine with having greater concentrations found in the warmer areas. ये लाइट वेटेड वेल लाइटेड रीजन्स के लिए भी रीजन्स में भी आकर करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड दे आर आल्सो फाउंड एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन बट रिलेटिवली विथ लेस लाइट ऑफ पेनिट्रेशन. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इनका ओवरऑल यूनिक रहता है, यूनिक एकदम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इनका फाउंड आउट होता है. क्लियर? Now the red thalli of most of the red algae they are multicellular and some of them मतलब कुछ उसमें ऐसे हो जाएंगे that have a very complex body organization. उनका body organization ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. जैसे अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, इसमें अगर आप देखिए सो इसका बॉडी फॉर्म जो है मोर और लेस लाइक सिंपल हो जाता है. इसका बॉडी फॉर्म सिंपल हो जाता है, लेकिन इसकी बॉडी फॉर्म जो हो जा रही है वो कॉम्प्लेक्स हो जा रही है. तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक का पूरा इनमें एसोसिएशन देखने को मिलता है. ना यहाँ पे थे. ठीक है, तो दोनों चीजें हमें मिलेंगी. फूड जो होता है वो यूजुअली इसमें जो स्टोर होगा वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है which is very much similar to a myelopectin and glycogen structure. myelopectin and glycogen structure तो ये relatable होता है. ठीक है, this thing you have to know it. and इसमें रिप्रोडक्शन यूनिक हो जाता है क्योंकि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव तो होता है बट एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें रिपोर्टेड नहीं होते. सो वेजिटेटिव ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होंगे एंड सेक्सुअली होते हैं बट वो नॉन मोटाइल स्पोर्स जनरली उनके थ्रू होगा एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. while sexual reproduction जो होता है वो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है and that is only and only via means of oogamy. so generally इसमें जो reproduction होता है वो oogamous के through होता है. that means sexual male and female gametes जो होते हैं वो they will be there, they will be fusing together to form the zygote like structure और ये fuse करके फिर gametes बनाएंगे. now it is oogamous and it is accompanied by complex post fertilization developmental process. मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब ये हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद रेड एलगी इज द वेरी फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हमें फर्टिलाइजेशन के बाद का डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है क्योंकि यहीं से फिर प्रोसेस शुरू होता है एक ओवरऑल एवोल्यूशन का. क्योंकि वही चीज हम देखेंगे ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में जब आगे हम बढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे. So altogether उसमें पूरा हमें post fertilization development process दिखता है which is not found in case of chlorophycy either in your Phaeophyceae as well. दोनों में नहीं होता है. ठीक है, examples includes Polysyphonia, there is Porphyra, there is Brachiolaria and Gelidae. ठीक है, so this is all about the algae part that we have seen and about the systems of classifications and about the branches of taxonomy. Now we can have a look first into the questions part. या थोड़ा सा ये एक्सरसाइज वाला पार्ट भी देख लेते हैं इसमें क्या बोला है. Now what is the basis of classification of algae? और इसमें the very first question that has been asked over here वो ये कि क्या बेसिस पर हम algae को क्लासिफाई किए हुए हैं. So the basis of classification of algae जो होगा that is going to be the flow chart. जो मैंने अभी आपको flow chart के बारे में बताया कि वो जो टेबल दिया हुआ है. ठीक है,
that is basically including features like habitat. सबसे पहली चीज habitat हो जाती है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज सेल वॉल क्या है, व्हाट इज द सेल वॉल कॉम्पोजिशन। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा रिजर्व फूड मटेरियल या स्टोर्ड फूड उनका किस फॉर्म में है, क्लियर। देन फ्लैजेला और उसका पोजीशन क्या है, that is also very very important. So there is habitat, cell wall, stored food कितना हो रहा है, flagella और उसका position क्या है ना। Then there is photosynthetic pigments also. Photosynthetic pigments, ये वाला पार्ट हो जाएगा। So these are all the features on the basis of which algae are primarily categorized and algae are primarily divided, ठीक है। तो यही आपको इसमें बताना है। So ये सब तो ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चन है which we will be covering when we will be coming into that part. All right, ये सब जो सारे स्ट्रक्चर्स है ना। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, if you can see that write a note on the economic importance of algae, ये वाला पार्ट। तो जो मैंने अभी आपको बताया था that algae is why algae is economically important, क्योंकि algae जो है वो हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह यूज होते हैं, दैट मींस वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस का काम करते हैं, लाइक एल्जीन एंड कैरागीन व्हिच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एंडेड algae. Then chlorella and spirulina, they are used by space travelers in the form of food supplement, आप वो बता सकते हो। Then when you look into other aspects, तो 70 species जो होते हैं marine algae की, which means brown algae and red algae के, वो यूज किया जाता है एज फूड, सिंस दे आर थैलॉइड फॉर्म्स, तो उनके फॉर्म्स को फूड की तरीके से यूज किया जाता है। देन देयर इज अगर व्हिच इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम इन ग्रेसिलेरिया, उसको माइक्रोब्स के प्रिपरेशन में, आइसक्रीम्स एंड जेलीज के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। सो ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, यही आप बता सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर कि कुछ टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करना है, और इसमें एक जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ रहा है वो आइसोगैमी का आ रहा है। तो आइसोगैमी, वी ऑल नो दैट आइसोगैमी इज बेसिकली द गैमेट्स, द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड अपीयरेंस सब में होते हैं। तो इट कैन बी आइदर फ्लैजेलेटेड आल्सो, इट कैन बी आइदर नॉन फ्लैजेलेटेड आल्सो, यही आपको बताना है विद एग्जांपल। नाउ द डिफरेंस हैज बीन गिवन ओवर हियर दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ब्राउन एल्गी। जो मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो वो टेबल बताया, वो टेबल अगर आप याद कर लेते हो, सो यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश एवरीथिंग, तीनों आपको डिस्टिंक्टिव फीचर्स के फॉर्म में याद हो जाएगी। सो दैट इज द केस। तो ये जो पार्ट है, ये कुछ ऐसा पार्ट था जो कि आपका एलिगी का पार्ट था दैट वी हैव डिस्कस्ड, ऑल राइट। सो अलोंग विद द क्वेश्चंस पार्ट, सो आपको पीडीएफ्स एंड पीपीटीज भी प्रोवाइड किए जाएंगे on the other hand for the practice questions as well, जो कि जो जिस लेसन का हम जिस दिन प्रैक्टिस करेंगे this theory content of NCERT, with that part only आपको एक PPTs भी प्रोवाइड किया जाएगा so that you can practice MCQs from that part. तो on a hand in hand हमारा सब्जेक्टिव भी चलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्म में, एंड ऑब्जेक्टिव MCQs भी चलेंगे प्रैक्टिस के फॉर्म्स में, ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट दैट वे, डू प्रैक्टिस एंड डू कीप लर्निंग विद दैट पार्ट, ओके। So next lecture में we will be discussing with the next topic, that is हम bryophytes की बात करेंगे, and उसके बारे में we will be talking and discussing about that part. Clear? Thank you very much.